Assalamu alaikum ji. This is Dr. Haroon Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. The topic we were studying was oncogenesis. In this topic, the subtopics we're going to cover are as under. We had already done the definitions. We have covered the role of oncogenesis, role of oncogenes in carcinogenesis, mechanism of action of proto-oncogenes, mechanism of action of oncogenes, and genetic basis of disease. We have covered so far. Today we're going to cover tumor markers and their clinical significance. In the course curriculum, some of the tumor markers are given which are to be covered, namely carcinoembryonic antigen, short form CEA, alpha fetoprotein, short form AFP, human chorionic gonadotropin, short form HCG, calcitonin, and prostatic to diagnose going to study on tumor markers and these markers as prescribed in your UHS course. As for you, नहीं आज का दिन कुछ दूसरा नहीं चढ़ा। स्टार्ट ही पहले 2 मिनट भी डिस्कनेक्शन हुई। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है। अरे जी, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप लोगों के। ठीक है, tumor markers and their clinical significance. A tumor marker is anything, substance that provides information about cancer. ठीक हो गया जी? ये है एक इसकी बड़ी क्रूड सी और बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन। A tumor marker is anything that provides information about a cancer. अगर हम इसकी जरा इन डेप्थ डेफिनेशन लें, इसकी जरा डिटेल्ड डेफिनेशन लें, तो वो कुछ इस तरह आती है। A tumor marker is anything present in the cancer cells or produced by the cancer cells or produced by the other cells of the body in response to cancer or produced by other cells of the body in response to benign non-cancerous conditions. Okay? So anything that is present in the cancer cells में ज़ाते खुद वो मौजूद हों, वो proteins, वो steroids or any other biomolecule whatsoever, या तो कैंसर में खुद प्रोड्यूस हो, प्रेजेंट हो, और produced by the cancer cells, जो कैंसर सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैंसर सेल में जो डीएनए है, ठीक है, उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे मुराद वो है कि जो प्रोटीन से ऑन्कोजीन बने थे ना, उन ऑन्कोजीन्स के जो आगे प्रोडक्ट्स हैं उनकी, और produced by other cells of the body in response to cancer. कैंसर हुआ है, अब जो उसके इफेक्ट्स बाकी बॉडी के सेल्स पे पड़े हैं
उनकी वजह से अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, और प्रोड्यूस बाय द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस कंडीशन। ठीक हो गया? So a tumor marker is anything that is present in the cancer cells, produced by the cancer cells, produced by other cells of the body in response to cancer, or produced by other cells of the body in response to benign or not non-cancerous conditions that provide information about a cancer, such as what kind of information? How aggressive the cancer is, how aggressive it is, whether it can be treated with the targeted therapy, and lastly, whether it is responding to a treatment. So this is your in-depth and complete comprehensive definition. ठीक हो गया जी? A tumor marker is anything that is in the cancer cells or produced by the cancer cells or produced by other cells of the body in response to cancer or produced by other cells of the body in response to benign non-cancerous condition that provides information about a cancer, such as how aggressive it is, whether it can be treated with a targeted therapy, or whether it is responding to a treatment. ठीक हो गया? ट्यूमर मार्कर सिर्फ इसलिए यूज नहीं होते कि वो कैंसर को वो ये बता दें कि जी कैंसर मौजूद है कि नहीं, ठीक है, वो ये भी बताते हैं कि कैंसर अगर मौजूद है तो वो कितना एग्रेसिव है, कितना ग्रो कर रहा है। कोर्स अगर आप दो कंसेक्टिव रीडिंग लेते हैं, लेट्स से 15 डेज अपार्ट, तो उसके अंदर जो ग्रोथ आती है, जो रिग्रेशन आती है, इससे आपको पता चल सकता है कि जी कितना एग्रेसिव कैंसर है। उसको अगर हम मजीद 3 से 4 रीडिंग्स लेते हैं ट्यूमर मार्कर की ईच 15 डेज अपार्ट, तो आपके पास एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके जो पर्पस है, whether it can be treated with a targeted therapy. सेम केस वही कि आप एक थेरेपी शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप उसके एवरी 15 डेज अगर उसकी ट्यूमर मार्कर की रीडिंग लेते रहते हैं, तो आपको ये अंदाजा हो सकता है कि क्या ये थेरेपी से ठीक होगा भी या नहीं, whether it is responding to a treatment, जो रिस्पॉन्स है वो कितना अच्छा है। ठीक है ना? सेम अगेन 15 दिन के डिफरेंस से अगर आप 3 से 4 रीडिंग लेते हैं आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, तो भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या जो आप थेरेपी दे रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर भी रही है या नहीं। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड and comprehensive of a tumor marker. Tumor markers are made by both normal and cancer cells. ठीक हो गया जी? ये ट्यूमर मार्कर्स है ना, ये जो सब्सटेंसेस हैं, कोई भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रोटीन ही बनती है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बनते नहीं, कॉन्जुगेट्स बनते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, कॉन्जुगेट्स हो सकते हैं। कॉन्जुगेट समझते हैं, प्रोटीन के साथ कोई और चीज मिली हो, प्रोटीन के साथ लिपिड्स मिले हो, प्रोटीन के साथ आपके कार्बोहाइड्रेट्स मिले हो, और एनी अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उन्हें कॉन्जुगेट्स कहा जाता है। So tumor markers are made by both normal and cancer cells. ठीक हो गया? जरा इसको भी इन डेप्थ देखते हैं। Tumor markers are traditionally proteins. They are traditionally proteins. ठीक है ना? और rarely other substances. Very rarely कोई और substances होते हैं that are made by both normal and cancer cells. But at higher amounts by cancer cells. ठीक है ना? अगर नॉर्मल सेल उसका 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैंसर सेल हो सकता है उसके 5 या उससे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करता हो। ठीक है? So tumor markers are traditionally proteins or rarely other substances that are made by both normal and cancer cells, but at a higher amounts by cancer cells. These can be found in कहां ये मिल सकते हैं आपको बॉडी में। ठीक है, सबसे पहले they can be found in blood, very important and most commonly assessed. ब्लड को असेस किया जाता है ट्यूमर मार्कर्स के लिए, ड्रॉ करना इजी होता है, नो डाउट इनवेजिव फिनोमेना, लेकिन ड्रॉ करना इजी होता है। ठीक है ना? कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है तो सबसे पहली चीज उसकी इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ही ड्रॉ किया जाता है उसको, स्पेसिफिकली कैंसर की बात कर रहा हूं। ठीक है, they can be found in urine, they can be found in stool, they can be found in tumor itself. ठीक है ना? ब्लड पे तो आप डायरेक्ट ब्लड टेस्ट कर लेंगे, यूरिन के ऊपर भी आप केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, स्टूल पे भी आप केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। ट्यूमर की आप फाइन नीडल एस्पिरेशन
साइटोलॉजी कर सकते हैं, जिसे FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन, एस्पायर करके निकाल के साइटोलॉजी, उसकी सेल मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है। दिस इज एब्रिविएटेड एज FNAC। ठीक है, बायोप्सीज की जा सकती हैं, बायोप्सी की ही टाइप है, बायोप्सीज की जा सकती हैं। ठीक हो गया। बायोप्सी क्या होती है कि जहां पे भी कोई ट्यूमर सस्पेक्टेड है वहां से उसका ट्यूमर का थोड़ा सा पोर्शन उतार लिया जाए और फिर उसको असेस किया जाए बाय वेरियस टूल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड्स। These tumor markers can be found in body fluids as well. Of course, आप इंटरसेलुलर फ्लूइड तो नहीं असेस कर सकते, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड असेस कर सकते हैं। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड तो पहले ही ले चुके हैं, देख चुके हैं, तो ये टिश्यू फ्लूइड आप ले सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, एंड they can be assessed from or found in any other tissue of the body. ठीक है, बस स्पेसिफिकली ये वाले जो हैं इनमें ज्यादातर ट्यूमर मार्कर्स, about 90 to 95% of tumor markers are either present in blood or urine or stool or tumor itself or body tissues. ठीक है ना, rarely they are found in any other, rarely they are found in any other tissue. ठीक हो गया। Moving on, tumor markers in cancer care. There are two main types of tumor markers that have different uses in cancer care. सबसे पहले सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स, देन टिश्यू ट्यूमर मार्कर्स। सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स आप कहां से असेस करेंगे? आप ब्लड से कर सकते हैं। कोर्स ब्लड पूरी बॉडी में से होकर किडनीज में जाएगा, वहां पे वो यूरिन में कन्वर्ट होगा, तो आप यूरिन से कर सकते हैं। कोर्स ब्लड पूरे जितने भी आपके टिश्यूज हैं उनको बेथ करता है, आपके इंटेस्टाइन को बेथ करता है, तो वहां पे आप स्टूल में इसको असेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है तीन जगह जहां पे आप ट्यूमर मार्कर्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है। देन कम्स टिश्यू ट्यूमर मार्कर्स। ये वो जो मैं आपको बता रहा था अभी, टिश्यू फ्लूइड या टिश्यू इटसेल्फ। ठीक है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये वो जगह है जहां से ये टिश्यू ट्यूमर मार्कर्स असेस किए जा सकते हैं। जी, ये जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स है ना, दे कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है किसी भी डिजीज का, अगर हम प्रोग्नोसिस वर्ड यूज करते हैं, प्रोग्नोसिस ये है कि अगर आप डिजीज हुई है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, और यू विल ट्राई टू ट्रीट इट। ठीक है ना। अब जब आप ट्रीट करेंगे तो दो आउटकम्स आएंगे, या तो पेशेंट बेटरमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, या पेशेंट डिटोरियोरेशन की तरफ जाएगा। पेशेंट बेटर होना शुरू हो जाएगा या डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर पेशेंट बेटर होना शुरू हो जाए, बेहतर होना शुरू, उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू, तो आप क्या कहते हैं? द प्रोग्नोसिस इज गुड। ठीक है ना। और अगर पेशेंट की तबीयत मजीद खराब होनी शुरू हो जाए तो आप कहते हैं द प्रोग्नोसिस इज बैड। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पेनक्रियाटिक कैंसर्स हैं, बॉडी के अंदर हो जाते होते हैं। ठीक है, पेनक्रियास के, हेड ऑफ पेनक्रियास का कैंसर स्पेसिफिकली, उसका प्रोग्नोसिस बहुत बुरा है। प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड व्हेन द CA head of pancreas is diagnosed. The amount of time estimated that the patient would live is 6 months. तो हम इसे कहते हैं the prognosis is bad. On the other hand, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं तो उसका प्रोग्नोसिस कहते हैं बहुत अच्छा है, the prognosis is very good. ब्रेस्ट कैंसर का उसकी वजह, जब आप उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं, डायग्नोज होता है CA ब्रेस्ट, तो उसको जब ट्रीट करना शुरू करते हैं थ्रू वेरियस मोडालिटीज, तो उसके एंड रिजल्ट में वो कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाता है, एंड द पेशेंट मे लिव अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, नॉट दैट मच नॉर्मल बट प्रीटी मच नॉर्मल लाइफ। तो हम इस तरह के केस में कहते हैं प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड। सो द सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोग्नोसिस, डिटेक्ट कैंसर दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक हो गया जी। आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर कोई कैंसर पोर्शन रह गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए,
Assess the response to the treatment. Monitor whether a cancer has become resistant to treatment. सर्कुलेटिंग ट्यूमर मार्कर्स इन चीजों के लिए यूज हो सकते हैं, whereas ये जो टिश्यू ट्यूमर मार्कर्स हैं they can be used to estimate the prognosis, to diagnose the stage and or classify the cancer. जो stages होती हैं कैंसर की, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, ठीक है ना, ये इस तरह की stages होती हैं, ये आगे से भी divided होती हैं, ठीक है, मैं उनकी classification में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेज 4 के ऊपर कैंसर तब पहुंचता है जब उसे कहते हैं कि वो मेटास्टैटिक हो गया, मेटास्टेसाइज हो गया, फैल गया बॉडी में, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स तक पहुंच गया और उसकी वजह से पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्टेज 4, ठीक। लास्टली select an appropriate treatment, ठीक है। So I'm going to repeat the tumor markers in the cancer here. There are two main types of tumor markers that have different uses in cancer care. First of them is circulating tumor markers. Second is tissue tumor markers. Circulating tumor markers can be used to estimate the prognosis, detect the cancer that remains after the treatment, and assess the response of the treatment. And lastly, monitor whether a cancer has become resistant to treatment or not. The tissue tumor markers can be used to estimate the prognosis, diagnose the stage, and classify the cancer. Lastly, select an appropriate treatment for the cancer. These are the few types of the cancer markers and their purposes or their applications. Tumor marker की specificity, very important. Specificity, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी आप समझने के लिए इस तरह देख लें कि आपको बायोकेमिस्ट्री सिर्फ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग पढ़ाएंगे, ये है स्पेसिफिसिटी, ठीक हो गया। लेकिन आप बायोकेमिस्ट्री का अगर टेस्ट होता है जो हमारे कॉलेज में होता है, उसको इन्विजिलेट करने के लिए लाजमी नहीं है बायोकेमिस्ट्री के टीचर है, ठीक है ना। तो यानी कि स्पेसिफिसिटी देयर इज क्वाइट लो, पढ़ाने के लिए स्पेसिफिक काफी ज्यादा है, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक लोग भी पढ़ाएंगे और एग्जाम लेने के लिए उसकी इन्विजिलेशन करने के लिए नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो दिस इज ट्यूमर मार्कर और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी। ट्यूमर मार्कर्स हैव स्पेसिफिसिटी फॉर सर्टेन कैंसर्स, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये तकरीबन आधी अधूरी सी है, ठीक है। इसकी पूरी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है, tumor markers may or may not have specificity for certain cancers. May or may not. They may have the specificity, ठीक है ना, and they may not have the specificity. मिसाल के तौर पे let's say हमारे पास दो ट्यूमर मार्कर हैं, एक है ABC और एक है XYZ. Let's assume the ABC tumor marker is specific for lung cancers, ठीक है ना। तो अगर ये आपको बॉडी में कहीं भी मिल गया, ठीक है, ब्लड में, यूरिन में, स्टूल में, फ्लूइड्स में, और कहीं भी मिल गया आपको ये बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये शो कर रहा है कि देयर इज अ लंग कैंसर, ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड, इफ वी अज्यूम that XYZ cancer या XYZ tumor marker specifically cancer, जो XYZ tumor marker है वो नॉन स्पेसिफिक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो हो सकता है लिवर कैंसर में भी रेज होता हो, रीनल कैंसर में भी रेज होता हो, रीनल सेल कार्सिनोमा में भी रेज होता हो, ठीक है, वो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर में भी रेज होता हो, ठीक हो गया, हो सकता है वो प्रोस्टेटिक कैंसर में, तो ये नॉन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कि वो अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि वो एक आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि अच्छा जी ये इस ऑर्गन के सेल्स का कैंसर। लेकिन अगर हम दूसरे की बारी लेते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वो किसी भी इनमें से 4 या 5 या 3 या 2 या 1 से ज्यादा किसी भी कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा ट्यूमर मार्कर्स करवाने पड़ते हैं, ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स करवाने पड़ते हैं टू नैरो इट डाउन, ठीक है ना। XYZ अगर इन 4 को कह रहा है
तो लेट्स से हम एक और ट्यूमर मार्कर करवाते हैं, दैट इज DEF, वो सिर्फ इन 3 कैंसर्स के अंदर नजर आता है। हम एक और ट्यूमर मार्कर करवाते हैं IJK, ठीक है, वो 2 में करता है सिर्फ। हम एक और ट्यूमर मार्कर करवाते हैं MNO, ठीक है, वो सिर्फ एक में। तो ये हमारे पास आखिर में रिड्यूस कर लेते हैं कि ओके जी हमारे पास सिर्फ एक बचेगा, ठीक हो गया। तो ये एक फिनोमेना होता है ट्यूमर मार्कर्स की स्पेसिफिसिटी का। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब ये देख भी लेते हैं जरा एग्जांपल्स के लिहाज से। प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज, प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, तो ऑफ कोर्स ये एक प्रोटीन है, ठीक है। प्रोस्टैट ये प्रोस्टैटिक, इसकी शॉर्ट फॉर्म PAP है, नॉट इंपॉर्टेंट, याद रहे ना रहे को फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रोस्टेट में है, उसके नाम में प्रोस्टेट है, तो इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर, ठीक है ना। It is highly specific for prostatic cancers. If you find this in your body, it means, ठीक है ना, अगर ये बॉडी में अगर आपको मिल गया तो it means there is a cancer in the body. Sure shot, ठीक है ना। इसकी अगर हाई रेज्ड वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है ना, ऑफ कोर्स एसिड फॉस्फेट प्रोस्टेट में वैसे भी होता है, नॉर्मल वैल्यूज के अंदर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू रेज हो गई है तो इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर। ये तो होगी हमारे पास specific tumor marker. Then comes another example, embryonic antigen. है तो एंटी क्या प्रोटीन, यार जी हाँ जी, आवाज आ रही है, ठीक है जी। I've got a thumbs up की आवाज आ रही है, so I'm gonna continue. I'm gonna continue the carcino embryonic antigen. अगर आप लोगों को भी आवाज ना आ रही हो ना, कोई इशू हो रहा हो, तो लिख दिया करें चैट में, तो उसका ये होता है कि जरा मतलब रुक जाता है और फिर कंटिन्यू करता है आराम से, ठीक है। और जी, कार्सिनो एम्ब्रायनिक एंटीजन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एंटीजन है तो हमारे पास ये प्रोटीन है, ठीक है। तो कार्सिनो एम्ब्रायनिक एंटीजन, it elaborates a variety of cancers arising in GIT, ठीक है ना जी। ये आपके पास स्टमक लाइनिंग के कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास रेक्टम के कैंसर हो सकते हैं, ये आपके पास कोलन के कैंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ कैंसर्स, सी more than one type of cancers are elaborated or indicated by the increased rate of CEA. आज कनेक्शन वैसे काफी खराब हुआ होगा, ठीक है जी। सो ये आपके पास सामने दो एग्जांपल्स सामने आ गई, एक स्पेसिफिक की which is specific for prostate और एक नॉन स्पेसिफिक की which elaborates a variety of cancers arising in GI. Gonadotropin XG, quite common, अगर इसके बारे में पहले आपने
मोमेंट प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है ना, और उसका तो किसी ने डाउनलोडिंग तो नहीं लगाई हुई? पता लगे बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग चल रही है किसी की। एनीवेज, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। अब आवाज का बताएं कैसी है, मुनासिब है या वैसी की वैसी है? बेहतर है जी, चलें जी, सुनने में आया जी आवाज बेहतर है, कोशिश करते हैं आगे चलने की। अच्छा जी, आवाज कट रही है सर, कर रही है सर, कर, चलो खैर कोई बात। बेटा इशू ये हुआ है आज के ना, थोड़ा सा कनेक्शन का मसला पड़ा हुआ, पता नहीं क्यों, शायद क्लासेस ज्यादा हो रही हैं तो एक ही कनेक्शन के ऊपर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मे बी, लेट्स सी क्या हो रहा है। मगर बताते रहे साथ साथ, ये है कि एटलीस्ट मैं रिपीट करता रहूंगा। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन अगर आपने कॉमनली सुना होता है, आई वुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है टू असेस वेदर द patient is pregnant or not, the female patient is pregnant or not, ठीक है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियन में से ये रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन, ठीक है ना, एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना, ये रिलीज होता है और ये असेस किया जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर चेंज होता रहता है, और ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्यूमर मार्कर एज वेल, इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्यूमर मार्कर एज वेल। ट्यूमर मार्कर के अंदर जब इसकी हाई रेज्ड वैल्यू आ जाती है व्हेन द पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट, इफ द पेशेंट इज सिंगल एंड नॉट प्रेग्नेंट, ऑफ कोर्स मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, इफ द फीमेल पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट और फिर भी उसकी वैल्यू हाई हो रही है तो इसका मतलब है देयर इज सम ट्यूमर इन द बॉडी, ठीक है। इट इज अ मार्कर ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंड टेस्टिकुलर कार्सिनोमा। ये एक एक एग्जांपल दिया आपको, एक फीमेल की एग्जांपल दी आपको जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, और एक टेस्टिकुलर कैंसर आपको मेल की एग्जांपल दी, ठीक है ना। इट इज नॉट एंटायरली स्पेसिफिक फॉर नियोप्लास्टिक सेल्स, ये कंप्लीटली स्पेसिफिक नहीं होता नियोप्लास्टिक सेल्स के लिए, जिस तरह मैं भी आपको बता रहा था, क्योंकि increased levels are detected with a normal physiological event that is pregnancy। बहुत commonly used है pregnancy के अंदर। सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, उसमें चेक की बीटा एचसीजी करते हैं, ठीक है, उसमें हम लिखते भी इस तरह है बीटा एचसीजी, ठीक है, एच कैपिटल डाल देते हैं, सीजी लिखते हैं कि जी ये टेस्ट करवाएं तो पता चल जाएगा जी कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं। सो एक हमने देखा स्पेसिफिक प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज, एक हमने देखा नॉन स्पेसिफिक कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, और एक हमने देखा जो आपके बॉडी में ट्यूमर्स को भी करता है इंडिकेट और बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी इंडिकेट करता है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ गई आपके कोर्स के मुताबिक ट्यूमर मार्कर्स की। देन कम्स अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP। फीटोप्रोटीन, फीटो यानी कि फीटस से, प्रोटीन तो ऑफ कोर्स ये प्रोटीन है। नॉर्मली ये फीटल टिश्यूज के अंदर जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक, जब व्हेन द बेबी इज इन द वूम ऑफ द मदर, इंट्रा एम्ब्रियोनिक ये रिलीज होता है, ठीक है ना, अल्फा फीटोप्रोटीन इंट्रा एम्ब्रियोनिक। लेकिन ऑफ कोर्स अब इंसान पैदा हो गया है, उसके बाद वो बड़ा होना शुरू हो गया, उसके बाद अगर किसी वक्त जिंदगी में उसकी रेज्ड अमाउंट आ जाती है अल्फा फीटोप्रोटीन की, तो इसका मतलब है देयर इज सम कैंसर गोइंग ऑन, ठीक है। It is a marker of hepatocellular carcinoma (HCC) and testicular carcinoma. Increased levels are observed in benign liver disease as well. ठीक हो गया ना। अब आप देख रहे हैं हेपेटोसेलुलर, और ये भी नॉन स्पेसिफिक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के अंदर ये रेज हो रहा है, लेकिन बिनाइन लिवर डिजीज में भी ये रेज हो रहा है, ठीक है ना जी। तो एक से ज्यादा ट्यूमर्स का ये मार्कर है। लास्टली कैल्सिटोनिन, calcitonin is a hormone released from the body, ठीक है ना।
The increased level are seen in medullary thyroid cancer. It's specific tumor marker, ठीक है ना, which is raised in medullary thyroid cancer. Thyroid cancer के अंदर ये increase होता है, ठीक हो गया। नॉर्मली बॉडी में ये मौजूद होता है, ठीक है ना, बट इट्स raised amount of calcitonin is a tumor marker for the medullary thyroid cancer. ये हमारे पास आपकी ये 5 कैंसर्स जो आपकी कोर्स के अंदर मौजूद थे, ये यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। मैं एक दफा दोबारा कर रहा हूँ। प्रोस्टेटिक एसिड phosphatase, highly specific prostatic cancer, carcinoembryonic antigen, elaborates a variety of cancer arising in GIT, human chorionic gonadotropin, ठीक है ना, marker for gestational trophophoric disease and testicular cancer, ठीक है ना, increased levels are seen in a physiological event such as pregnancy, alpha fetoprotein, marker of hepatocellular carcinoma and testicular carcinoma. The increased level may also be seen in benign liver disease. And lastly, calcitonin, that increased level of calcitonin shows a medullary thyroid cancer. ठीक हो गया जी। इनके बारे में ये पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट प्रोस्टेट कैंसर, कार्सिनोएम्ब्रायनिक एंटीजन, a variety of cancers arising GIT, CG, gestational trophoblastic disease, testicular carcinoma may also be raised in pregnancy, alpha fetoprotein, hepatocellular carcinoma, testicular carcinoma, benign liver disease, calcitonin, medullary thyroid cancer, ठीक है ना जी। ये आपके पास 5 आपके जो ट्यूमर मार्कर्स लिखे गए थे आपके कोर्स के अंदर, उनकी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। इनमें से स्पेसिफिक कौन कौन सा हुआ, ये बड़ा स्पेसिफिक हुआ और ये बड़ा स्पेसिफिक हुआ। नॉन स्पेसिफिक कौन कौन से हुए, ये नॉन स्पेसिफिक हुआ, ये नॉन स्पेसिफिक हुआ और ये नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना। ये मैं लिख भी देता हूँ साथ में, याद रहे, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, राइट जी। लेट्स मूव ऑन। नया नॉलेज मिला, लेट्स अप्लाई दिस नॉलेज, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन के साथ पढ़े क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर करना है आपने। A 50-year-old male suffering from chronic hepatitis had a diagnosis of hepatocellular cancer, hepatocellular carcinoma, ये कहा जाता है, HCC कहा जाता है इसे, 2 years ago, and underwent liver transplant surgery. He did not have any family history for cancer. Recently, lymph node swellings were suspected. When one of the following tumor markers, which one of the following tumor markers is the best tumor marker for follow-up in this case? ठीक है, जब ये आपने 5 पढ़े हैं ना, इन्हीं के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनमें से कोई एक मुझे बताएं जो इस ट्यूमर को मार्क करेगा, ठीक है। काइंडली चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा वो ट्यूमर मार्कर है जो हमारे पास Mashallah, I'm really impressed. Mashallah, Shajil, Mariam and Gohar, in this very order, they answered. Mashallah, I'm really impressed. कि आप लोग सुन रहे हो। Thank you very much. You applied the knowledge. Let's see. It is alpha fetoprotein. Very right. ठीक है ना। अगर हम देखते हैं हमारे पास CEA, कार्सिनोएम्ब्रायनिक एंटीजन, किसके लिए था? A variety of GIT cancers. प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट किस लिए था? प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए स्पेसिफिक था। कैल्सिटोनिन किस लिए था? मेडलरी थायराइड कैंसर। और HCG किस लिए था हमारे पास? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज और टेस्टिकुलर कार्सिनोमा may be increased in pregnancy as well, right जी। और ये अल्फा फीटोप्रोटीन हमारे पास ये था हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के लिए और लास्टली बेनाइन लिवर डिजीज के लिए, ठीक है जी।
Okay. A very important point to remember in your clinical practice. Inshallah, you will be doctor one day very soon. जिस तरह 2 साल का नहीं पता चला उस तरह अगले 3 साल का तो बिल्कुल ही पता नहीं चला, ठीक है? So you should remember this point in your clinical practice. There are no ideal tumor markers that are known so far. ठीक है? So the best approach is to take a very good history. Sorry for that. Take a very good history. ये जो investigations वगैरह है ना, ये 3 to 4 decades old है सिर्फ, ठीक है? उससे पहले क्या होता था? उससे पहले कैसे मेडिकल जो हमारा फील्ड है उसने इतनी तरक्की की, लोगों को इलाज करना शुरू किया? It was done by a very good history, a thorough physical examination, ठीक है? Clinical practices से, ठीक है ना? आप इंशाल्लाह थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में इतना जोर दिया जाता है बेड साइड टेक्निक्स को, ठीक है, एग्जामिनेशंस को, हिस्ट्री को, ठीक है, इतना ज्यादा और फिजिकल एग्जामिनेशन और सब कुछ के लिए इतना जोर दिया जाता है इन चीजों के ऊपर जिसकी हद कोई नहीं, टू स्ट्रेंथन यू इन योर क्लिनिकल एसेट्स, इन योर क्लिनिकल नॉलेज, ठीक है? ये जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, ये आज की पैदाइश है, ठीक है? आज की तारीख के अंदर हम अपना एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है ना? अब तक 4-5 चीजें उसके अंदर निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लैब्स भेज देते हैं। लैब्स ऑटोमेटिकली उनमें से कई डायग्नोसिस को डिसरिगार्ड कर देती हैं और हमारे पास एक डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमारा फाइनल या प्रोबेबल डायग्नोसिस होता है, ठीक है? ये आज की तारीख है, जब ये नहीं होती थी तब भी सब कुछ होता था। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑलवेज टेक अ दिस परफॉर्म थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन. Sometimes you do all, you take a history, you take an examination, ठीक है ना? You send labs, you manage the patient, you do follow-ups, but the patient doesn't get well. There might be something in the physical examination that you might have missed, ठीक है ना? That may lead to diagnosis, ठीक है? अभी ये मैं खत्म कर लूं, ये कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, अभी काम ही करते हैं, ठीक है? देखते हैं. Then use a battery of markers. Always prescribe more than one markers, tumor markers. Always prescribe more than one tumor markers. Very important. एक ट्यूमर मार्कर से कभी काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा ट्यूमर मार्कर. And then use, when you get the results of the tumor marker and it points towards some tumor, let's say a tumor ABC or tumor A, ठीक है ना? अगर वो इस ट्यूमर की तरफ इशारा कर रहा है, then use confirmatory investigations such as histopathology, उसकी biopsy करवाएं, उसकी fine needle aspiration करवाएं, ठीक है ना? और use ultrasonography or other radiological techniques such as CT scan, such as MRI, ठीक है ना? such as X-rays, ठीक है ना? उसके मजीद confirmatory investigations करवाएं. तो ये आपके पास तरीके हैं जिससे आप एक कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक हो गए? That being said, we are almost done with our topic. ये एक दफा फिर आपके सामने है. स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे इसको याद रखना चाहें वैसे याद रख लें. इंपॉर्टेंट आपके 5 टीमो मार्कर्स आपको कोर्स में दिए गए थे, तो वो है, ठीक है? टीमो मार्कर्स बहुत सारे होते हैं, कई टीमो मार्कर्स कैंसर एंटीजन के नाम से होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती CA, CA1, CA2, CA3, CA153, 147, ठीक है ना? बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ठीक है? ये आपको ऑफ कोर्स सारे बताने की तो कोई नहीं है, आपको सेंसिटाइज करना होता है चीजों के साथ, ठीक है ना? इंशाल्लाह जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे तो उस वक्त आपको जरा ज्यादा मार्कर्स के बारे में पता होगा. जब आप फाइनल ईयर पास कर लेंगे, आप माशाल्लाह हाउस ऑफ मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है ऑन्कोलॉजी की तरफ, तो तब याद करने की चीजें सारी. नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर तो सारे याद नहीं होने चाहिए, तो जरूरी है. हाँ, ये बेसिक कुछ है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिसिटी,
टू अंडरस्टैंड द नॉन स्पेसिफिसिटी एंड टू अंडरस्टैंड कि ये बॉडी में नॉर्मली मौजूद होती हैं चीजें, इनकी रेज्ड मौजूद, जिस तरह ये कैल्सिटोनिन बॉडी में मौजूद होती है, प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेट बॉडी में मौजूद होती है, एचसीजी बॉडी में मौजूद हो सकता है, ठीक है ना, ये बॉडी में मौजूद होती हैं और इनकी रेज्ड वैल्यू आपके लिए प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर। राइट जी, I'm done with my course. These are the topics I covered. I covered some definitions, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटोऑन्कोजीन की definition थी, जिसके अंदर हमारे पास ऑन्कोजीन की definition थी, जिसमें हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन की definition थी, जिसमें हमारे पास कार्सिनोजिन की definition थी, कार्सिनोजेनेसिस की definition थी, ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस थे हमारे पास, हमने देखे थे जो डीएनए बेस्ड वायरस, डीएनए वायरस थे और आरएनए वायरस, ठीक है। उसके बाद हमने रोल को जीन कार्सिनोजेनेसिस देखा था कि कैसे वो जाके कार्सिनोजेनेसिस करवाते हैं ऑन्कोजीन्स। फिर हमने एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स देखी थी, वो जो हमारे पास वो तराजू वाला सिस्टम था, ठीक है ना जी। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स देखा था कि किन किन मैकेनिज्म से कराते हैं, ग्रोथ को इनहेंस करके, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को कम करके और एपोप्टोसिस को रोक के, ठीक है ना। ये हमारे पास जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज देखी थी, जिसमें हमने डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का देखा था कि अगर इस सारे फिनोमेना में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कैंसर हो जाता है। फिर हमने आज ट्यूमर मार्कर्स देखे, उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उनमें हमने कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन देखा जो जीआईटी के वायरसेस को एलैबोरेट करता है, अल्फा फीटोप्रोटीन देखा जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा को करता है एलैबोरेट, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन देखा जो हमारे पास जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक टेस्टिकुलर कैंसर को करता है एलैबोरेट, कैल्सिटोनिन देखा जो हमारे पास मिडिलरी थायराइड कैंसर को एलैबोरेट करता है और प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस देखा जो हमारे पास प्रोस्टेटिक कैंसर को एलैबोरेट करता है। तो ये था हमारा सारे का सारा ऑन्कोजेनेसिस का कोर्स व्हिच इज डन। ये आपका यूएचएस का कोर्स है, इस पे एक नजर मार लें, अगर कुछ रह गई है तो प्लीज लेट मी नो। आई हैव गुड 18 minutes left. If there is something that has been omitted by me, missed by me, please let me know. चीज समझ नहीं आई है तो let me know so that I may wind up with this point, with this topic and move on to the next one. Oncogenes हमने किए हैं and their role in carcinogenesis बिल्कुल हमने किया। Mechanism of activation of proto-oncogenes जी हमने किया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स हमने किया, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं और ऑन्कोजेनेसिस वायरसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमने किया। जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज देखी है हमने। दिस विल हेल्प अस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा भी इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, उससे अगला टॉपिक जो है हमारा बायो केमिकल जेनेटिक्स। इसके अंदर हमें बहुत मदद करेगी ये जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज, क्योंकि इसके अंदर हमने वो देखा था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। सो दैट इज डन। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उनमें हमारे पास नाम थे कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, कैल्सिटोनिन एंड प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस। So I need a confirmation from any of you that I have covered all the points in your UHS course so that I may move on. So are there any tests which can cover more than one of these tumor markers? आशना गौर बेटा जरा क्वेश्चन दोबारा पूछें। Are there tests which can cover more than one of these tumor markers? कोई ऐसा यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा टेस्ट हो जिसमें एक से ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स हो? हाँ, तो वो आप एक से ज्यादा ट्यूमर मार्कर वैसे कर लें। अगर आपका क्वेश्चन ये है तो ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करें। अगर आप कहते हैं तो मैं आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, जी बेटा ऑफ कोर्स आप एक से ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स दे दें, ठीक है ना, एक से ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट कर लें, ठीक है ना। कोई एक क्यूमुलेटिव नाम नहीं होता उसका, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव नाम नहीं होता है, ये अलग अलग ही आपको प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। एज फार एज माई नॉलेज गोज, जो ये चीजें कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं और ऑन्कोलॉजी ऐसी चीज है कि उसके साथ वी आर नॉट वेल वर्स्ड, नॉर्मल डॉक्टर्स आर नॉट वेल वर्स्ड, स्पेसिफिकली बीइंग अ बायोकेमिस्ट आई एम नॉट वेल वर्स्ड कि जी आजकल ऑन्कोलॉजी के अंदर क्या, लेट्स से कि हमारे पास ये 5 ट्यूमर मार्कर्स हैं, CEA, AFP, HCG, मैंने की 5 की बात करूं, कैल्सिटोनिन और PAP, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस। लेट्स से इन तीनों का कोई नाम हक के नाम से आ गया, ठीक है ना, हक बैटरी ऑफ टेस्ट,
हार्क बैटरी ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। तो आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन ऑफ कोर्स जहां तक मैंने इनको देखा है वो ऐसे ही है कि ये सब अलग अलग किस टाइप की है, ठीक है ना। Is this, if this is your answer and the answer is okay, if not please elaborate. Any other question? Jipita, I would need a confirmation from your side, from the student side, from any of the 125 participants available at this time. ठीक है, 128 शो हो रहे हैं, -3 जो एक होस्ट साहब है और 2 मेरे जो लॉग इन हुए हैं, ठीक है ना, उनको निकाल के आप, यू वेलकम बेटा, सॉरी नाइस ऑफ यू, उनको निकाल के जो 125 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि आई हैव कवर्ड माय कोर्स, प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन सो दैट आई मे मूव ऑन. So, thank you very much, Mariam, for the confirmation. I have covered my course. Now I'm going to move on. Move on to bigger and better things. Much more beautiful things. Oncogenesis गंदी चीज है, मुझे नहीं अच्छी लगती. Genetics मुझे अच्छी लगती है. Oncogenesis बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. I like this metabolic pathways. Of course, biochemistry. क्या करूँ? Bread and butter है हमारा ये. Integration and regulation of metabolic pathways. This is our upcoming topic. I have 13 minutes left. Of course, मैं काफी ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर, कुछ हद तक कवर कर सकता हूँ, ठीक है. आपको अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो ओके फाइन, आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. अगर आपको ये ऑन्कोजेनेसिस के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आई विल गिव यू सम टाइम. ऐसे भाग दौड़ नहीं मचानी नहीं चाहिए. मगर ये है कि ये मैंने ना जो सोचा हुआ है कि आपका ये जो इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है. आज मेरा लेक्चर है, इज मंडे, ठीक है ना. उसके बाद मेरा वेडनेसडे को लेक्चर है, उसके बाद मेरा थर्सडे को लेक्चर है, ठीक है ना. ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स आर फ्रॉम 11 to 12. मैंने सोचा है कि आज इसको शुरू करके इंटीग्रेशन को मैं 5-10 मिनट जरूर लगानी, ठीक है. उसके बाद इन 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने ये खत्म कर देना है इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं, आप लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं, आप प्रोटीन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं. ये इन सब की इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, ऑर्गन वाइज, ठीक है ना. देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ठीक है ना. बस आपके पास जो सारा नॉलेज स्कैटर्ड है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, ठीक हो गया. So if you have any questions about the oncogenesis, please let me know. Come on, 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 come on. जितनी देर हम ये आप लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन सोच रहे होंगे तो वो क्वेश्चन सोच रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं सोच रहे वो मेरी स्टोरी सुने. मुझे बड़ी जोर की आई स्टोरी को मैंने करनी तो है कहीं ना. I was working in Fatou Memorial Hospital back in 2010. It was somewhere around March, April. इमरजेंसी में मैं काम कर रहा था. आई वाज द मेडिकल ऑफिसर देयर. वहाँ पे क्या हुआ कि ना हमारे पास एक पेशेंट आई. आई वाज द ओनली ऑन ड्यूटी डॉक्टर एट दैट टाइम. शाम का टाइम था. एक फीमेल पेशेंट आई, रिसीव हुई विद कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग, नॉजिया. पेशेंट आई, ओल्ड एज की पेशेंट थी, अबाउट 45 to 50 years old. I can't recall the exact age. उसके साथ उसकी एक बेटी थी and no male attendant with them. अब वो फातिमा मौलवी की इमरजेंसी अगर किसी ने देखी है तो किसी भी हॉस्पिटल के, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी उनको आप देखें ना तो उनके अंदर एसी चल रहे होते हैं. So the patient came to the emergency. I received her. I started evaluating her. कुछ जो इश्यूज थे, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी उनकी, उनको मैंने असेस किया, पेशेंट को एग्जामिन किया. The girl was very apprehensive. She didn't give me complete history. She was very worried about her mother's condition कि वो बड़ी तकलीफ में है, वो नाउजिया फील हो रहा है उन्हें और वो बार बार उकाइयां आ रही हैं उन्हें. आप प्लीज कुछ कर दें. जो रेगुलर ट्रीटमेंट होता है एसिड पेप्टिक डिजीज का, एपीडी का, वो मैंने उसको देना शुरू किया. एंटासिड्स दिए,
फ्लूइड्स दिए थोड़े से, एंड आई स्टार्टेड मैनेजिंग हर। अब वो ना बिल्कुल जो मेरा डेस्क था, जो जहाँ पे मैं बैठता था या जहाँ पे मैं खड़ा होता था, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ वाला बेड था उसका, उस पेशेंट का। द पेशेंट, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ कि मैं वहां से गुजरा हूँ किसी और पेशेंट के लिए, तो वो पर्दे आगे कर दिया करते थे, जिसने इमरजेंसी में करते हैं वो पर्दे आगे कर दिया करते थे। तो मेरी नजर पड़ी पर्दे में से कि वो ना अपने माथे के ऊपर से पसीना साफ कर रही है। आई गॉट वरीड राइट अवे। इमरजेंसी थी, लोड पड़ा हुआ था, शाम का टाइम था। I got really worried at that second. यार एसी चल रही है, मार्च अप्रैल का महीना, कैसे इसको पसीना आ रहा है? I called the attendant, the female attendant जिसकी बेटी थी, उसको मैंने बाहर बुलाया। मैंने पूछा क्या आपकी वालदा को डायबिटीज है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा आपने मुझे हिस्ट्री में क्यों नहीं बताया डायबिटीज? ओह आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, आई फॉरगॉट दैट वर हर रिमार्क। Listening to her remark, I rushed towards the patient. I started her ECG, and on ECG, there were changes. The patient was having ongoing myocardial infarction. ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इनमें न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, इनको पेन नहीं होती, ठीक है। And the reason point that I saw in that patient was कि उसको पसीना आ रहा है, जो एक हॉलमार्क फीचर है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। And I went to the ECG. The patient was having acute myocardial infarction, acute cardiac syndrome at that very time. Of course, I was not that much well versed in ECG at that time. I did my house job in 2009. Did my graduation in 2007. Did my house job in 2009 after a couple of years. Okay. So I was not well versed in ECG, but I could assess that there were ST changes in that ECG of the patient. I called the cardiology senior registrar who was on call at that time, showed her the ECG, and he said that this patient is having a myocardial infarction at this time. They started treating her, shifted her to CCU. My point of telling you this story is quite simple. Examination and history goes a very long way. जितनी मर्जी लैब इन्वेस्टिगेशंस आ जाएं, जितनी मर्जी आप लोगों के पास टूल्स आ जाएं, जो चीजें आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से मिल सकती हैं, वो चीजें आपको बाकी चीजों से नहीं मिल सकती। सो मुझे जोर की स्टोरी आई हुई थी, मैंने सुना दी। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज की तरफ। आपका जो यूएचएस का कोर्स करिकुलम है वो आपके सामने, इट्स क्वाइट सिंपल। फीड, फास्ट साइकिल एंड स्टारवेशन। फीड, फास्ट साइकिल, फीड, फास्ट साइकिल दोनों टर्म्स यूज होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। एनाबॉलिक पाथवेज कौन से होते हैं? जहां पे सिंथेसिस हो रही हो। कैटाबॉलिक पाथवेज कौन से होते हैं? जहां पे डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? डिग्रेडेशन पाथवे। क्या है? इस पाथवे। तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस क्या है? हमारे पास एक कैटाबॉलिक पाथवे की एग्जांपल है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास एनाबॉलिक पाथवेज की एग्जांपल्स। Then an overview of regulation and integration of various metabolic pathways. Regulation आप कर चुके हैं साथ साथ during various metabolisms like carbohydrate metabolism, lipid metabolism और प्रोटीन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। आप इनकी रेगुलेशन साथ साथ कर चुके हैं। रेगुलेशन को मैं इतना टच नहीं करूंगा इसके अंदर, इट्स अ वेरी वाइड एंड ह्यूज फिनोमेना। अगर उसको करना शुरू कर दें तो हम इसमें फंस जाएंगे। हाँ, इंटीग्रेशन of various metabolic pathways, I would really go for that, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी हुई, तो उसी को देखेंगे। तो रोल ऑफ लिवर देखेंगे, ब्रेन देखेंगे, एडिपोज टिश्यू देखेंगे, और ये हार्ट और स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, है ये दोनों मसल्स ही, तो मसल्स को देखेंगे, ठीक है। ये हमारी चीजें जो हमने इसके अंदर कवर करनी है। ऑफ कोर्स मेरी बुरी आदत है कि मैं यूएचएस के कोर्स करिकुलम को जरा हिला देता हूँ अपनी मर्जी से, अपनी फीस के लिए। हमारे पास सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, जिनमें हमारे पास फीस फास्ट साइकिल की डेफिनेशन आ जाएगी,
एब्जॉर्प्टिव स्टेट की डेफिनेशन आएगी, फास्टिंग स्टेट की डेफिनेशन आएगी। देन वी विल गो ऑन द मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है ना जी, जो हमारे पास पाथवेज है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज, हम उन पे जाएंगे, जिनमें हमारे पास एब्जॉर्प्टिव स्टेट और रोल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द एब्जॉर्प्टिव स्टेट, फास्टिंग स्टेट एंड रोल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द फास्टिंग स्टेट, हम इनको कवर करेंगे। एंड लास्टली वी विल integration and regulation of various metabolic pathway. Again, I will not touch the regulation. Regulation आपको आपके respective courses के साथ और हर एक pathway के साथ in detail करवा दी गई हुई है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की मैंने खुद करवाई थी, लिपिड मेटाबॉलिज्म की आप लोगों को डॉक्टर यासिन ने करवाई है। I have seen those lectures. In fact, I have created those lectures. Dr. Yasin have improved those lectures. रेगुलेशन उनमें एम्पल अमाउंट में मौजूद है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो आपको डॉक्टर अली ने करवाई है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि उन्होंने भी रेगुलेशन आपको साथ साथ करवाई होगी। तो ये आप लोगों ने रेगुलेशन ऑलरेडी की हुई है, नॉट गोना गो इनटू दैट। इंटीग्रेशन फॉर श्योर वी विल गो ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज the end of the lectures, ठीक है। सिक्स एडिशन का मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, दैट इज चैप्टर 24। सेवंथ एडिशन में भी यही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द 3 फास्ट साइकिल, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर दैट विल गिव यू ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर दीज टॉपिक्स दैट वी आर अबाउट टू कवर, एंड वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। क्या करें 3 मिनट में? चलो ये वाली स्लाइड कर लेते हैं और उसके बाद रोक देते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स, ब्रेन, pancreas, liver, portal vein, small intestine, skeletal muscles, adipose tissue, lymphatic system. खाना खाते हैं आप, कहाँ जाता है? Intestine में. Intestine absorbs nutrients from diet and moves them into the blood or lymphatic system. ठीक हो गया? Lymphatic system carries lipids from the intestine to the liver, ठीक है। Portal vein carries nutrients from the intestine to the liver. जो lymphatic system है वो क्या कर रहा है? सिर्फ lipids को कैरी कर रहा है। जो portal vein है वो क्या कर रही है? वो सब nutrients को कैरी कर रही है from intestine to liver. खाना आया intestine में absorb होना शुरू हुआ, उसके बाद वो via portal vein और via lymphatic system liver तक पहुंचा, ठीक हो गया। लिवर भाई अब क्या करेंगे? बाद में करेंगे। पहले पेनक्रियास, it secretes insulin और glucagon in response to blood glucose concentration. अगर blood glucose ज्यादा होगी तो इंसुलिन होगी रिलीज, अगर blood glucose कम है तो glucagon रिलीज होगी, ठीक है ना। ब्लड के अंदर ये पेनक्रियास असेस करता रहता है लेवल ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। लिवर में पहुंचा, लिवर प्रोसेसेस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, फ्रॉम फैट्स नहीं एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोसेसेस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जो भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, उनको प्रोसेस करता है लिवर, मेजर ऑर्गन है। एडिपोज टिश्यू synthesizes, stores and mobilizes triacylglycerol. Skeletal muscles uses the formed ATP to do mechanical work. And lastly, our brain, it integrates input from the body and surroundings and sends signals to the other organs of the body. Actually, the brain regulates all of it, ठीक है ना, by signal transduction, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन हार्मोन सिर्फ ब्रेन से नहीं निकलते, हार्मोन्स तो बॉडी में से कई कई जगह से निकलते हैं। हमारे पास जो ये खाने के साथ जो लेना देना होता है ना इन चीजों का मेटाबॉलिज्म का, वो यूजुअली पेनक्रियास से होता है, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन से। ऑलराइट, सो दीज आर आवर ऑर्गन्स व्हिच आर यूज्ड इन आवर बॉडी फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ये है हमारा टॉपिक जो हम आगे से अब शुरू करेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड इंशाल्लाह। ये मैं 2 लेक्चर्स के अंदर इसको खत्म कर दूंगा, इवन कि कोई किसी किस्म का इशू ना हो। छोटा सा टॉपिक है हमारा, आपने कोर्स करिकुलम देख लिया, एक चैप्टर है सारा, 2 टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। आई हैव क्रिएटेड दोज लेक्चर्स फ्रॉम योर लिपन पार्ट 24th एडिशन, यू मे हैव अ लुक एट देम बिफोर लेक्चर एज वेल। परसों हमारा लेक्चर है, डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। जी,
Thank you very much for your time. I'm signing off. Allah Hafiz.